میں بات کریں گے افسوسناک واقعے کی۔ آپ کو بتائیں کہ چلڈرن ہسپتال میں بچے کی ہلاکت پر ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ۔ ینگ ڈاکٹرز نے سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈی احتجاجاً بند کر دی ہیں۔ چلڈرن پی آئی سی جنرل چناؤ اور میو ہسپتال میں او پی ڈی بند ہیں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا ملزموں کی ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعہ شامل کرنے کا مطالبہ ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بلال سے بھی دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تفصیلات کے مطابق 1 سال کی بچی میڈیکل وارڈ میں داخل تھی۔ طبیعت نہ سنبھلنے پر ڈاکٹرز کی کوشش کے باوجود جان پر نہ ہو سکی اور خالق کی حقیقی سزا ملی۔ بچے کی ہلاکت پر لواحقین آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ لواحقین نے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کی اور ڈیوٹی اور ڈاکٹر جبکہ دیگر عملے پر بھی تشدد کیا۔ لواحقین نے ڈیوٹی ڈاکٹر کو تھپڑوں، لاتوں اور گھونسوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اب ڈاکٹرز کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال۔ بتائیے بلال، اس بارے مزید۔ گزشتہ روز چلڈرن ہسپتال میں اس بچی کی ہلاکت کے معاملے پر لواحقین کی جانب سے ینگ ڈاکٹرز پر تشدد کیا گیا تھا اور آج ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے جو بڑے ہسپتال تھے ان کی او پی ڈی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج بھی لاہور کے جو بڑے ہسپتال ہیں جن میں چلڈرن ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، سرسز ہاسپٹل، میو ہاسپٹل سمیت جناح ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال کی او پی ڈی بھی بند تھی، جبکہ جو دل کا ہسپتال ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، یہاں پر بھی کچھ عرصے کے لیے جو ہے یہ او پی ڈی کی گئی، لیکن 10 بجے کے بعد مریضوں کو دوبارہ سے او پی ڈی جو ہے کھول کے ان کو علاج معالجہ دیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جو سیکیورٹی جو لیجسلیشن ہے یہ چیزیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو سیکیورٹی الاؤنس دیا جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو لواحقین نے تشدد کیا ہے ان پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر اور دفعات ایف آئی آر میں شامل کی جائیں۔ ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانیں گے تو او پی ڈی کی اسٹرائک کے بعد ایمرجنسی کی جو اسٹرائک ہے یہ بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب ہسپتالوں کے اندر جو دور دراز سے مریض اپنے علاج معالجے کے لیے آئے تھے ان کو شدید اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی چلڈرن ہسپتال کی او پی ڈی بند ہے۔ روزانہ میں چلڈرن ہسپتال میں 4 سے 5 ہزار بچوں کی ایمرجنسی جو او پی ڈی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن جو آج نہیں ہو سکی اور بچے بھی متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے، سرسز ہسپتال ہے، جناح ہسپتال ہے، جنرل ہسپتال ہے، ان تمام ہسپتالوں کی او پی ڈی سے روزانہ کوئی 4 سے 5 ہزار بچے جو ہیں جو مریض اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج یہاں پہ بھی او پی ڈی بند ہونے کی وجہ سے ان تمام مریضوں کو شدید اذیت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ایسے مریض تھے جو کہ غریب تھے اور دور دراز کے علاقے سے آئے تھے، جو آنے جانے کا جو کرایہ ہے یہ بھی کسی سے ادھار لے کے آئے تھے، تو ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مریضوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ینگ ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہے اس کو تسلیم کرے تاکہ ہسپتالوں کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو علاج معالجہ ہے یہ چل سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کا۔ اور اب آپ کو براہ راست لیے چلے ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نیو مسلم ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اٹیکس ہوتے ہیں ان پہ، ہمارے لوگ جب ریڈ کرنے جاتے ہیں جہاں پہ سنتھیٹک ملک کی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگوں پہ بہت زیادہ پولیس کی مدد کے ساتھ ہم جاتے ہیں آف کورس، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں مختلف لا اینڈ آرڈر سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اس کو چونکہ میں جیسے بتا رہا تھا پچھلے 10 سال سے اور اس سے پہلے بھی یہ دودھ کے جو ملاوٹ کا ہے اس پہ مختلف ایجنسیاں کام کرتی رہی ہیں، لوکل کونسلز کام کرتی رہی ہیں، پولیس، انتظامیہ، لیکن جب سے یہ ادارہ بنا 2013 سے آنورڈ انہوں نے اس کو فوکس بھی کیا اور کافی بہتری بھی آئی، لیکن چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے کہا اس کے اندر انسینٹیو بڑھ رہا ہے، گریڈ بڑھ رہی ہے، لالچ بڑھ رہی ہے اس کو لے کے، اور ہماری چونکہ میس کنزمپشن کے اگینسٹ میس پروڈکشن نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے جو گیپ ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا اس کو فل کرنے کے لیے وہ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ گرمیوں میں جب دودھ کی پیداوار میں کمی آتی ہے وہ اس طرح کے سنتھیٹک ملک اور مصنوعی دودھ اور ان ساری چیزوں کے اندر وہ بھرپور انداز سے اپنے پیسہ کمانے کے لیے شامل ہو جاتا ہے۔ اور ہر سال ہی ہمارے جیسے ادارے جو دیگر اور بھی اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے متحرک ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ پورے پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اور ایک ٹارگٹ بھی سیٹ کیا ہے۔ آج ہم آپ کے توسط سے اس کو ڈائریکٹوریٹ آف ملک صرف دودھ کو لے کے ایک ہم نے ڈائریکٹوریٹ اسٹیبلش کیا ہے، آج کی تاریخ میں اسٹیبلش کیا ہے۔ میرے ساتھ خضر صاحب جو اس کے پہلے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور پچھلے 1 ماہ سے ہم نے اس پہ سوچ بچار کی، اور یہ ادارہ جو ہمارا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نیچے کام کر رہا ہوگا اس کے لنکیجز
यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, नॉट कि सिर्फ यूएस के साथ नहीं, मुल्तान में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, जहां जहां वेटनरी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रिसर्च का पहलू बहुत अहम है कि दूध के गिर्द जो पूरी एक इकॉनमी है, जो बिजनेस है, जो इसकी प्रोडक्शन में कमी है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ हमारे जो एसोसिएशन हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, जिसमें फार्मर एसोसिएशन है, गवाला एसोसिएशन है, वो भी इनके साथ शामिल रहेंगे। तीसरा ये है कि जो हमारा टेस्टिंग का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मिल्क की टेस्टिंग है वो इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है कि अब उसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं तलाश कर रहे होते कि इसके अंदर फैट कितना है या इसके अंदर दूध कितना है और पानी कितना है। अब उसके अंदर जो केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, उसके लिए भी हमें अपनी लेबॉर्ट्री की टेस्टिंग को भी इम्प्रूव करना है। और हम अपनी लेबॉर्ट्री को, जो मोबाइल लेबॉर्ट्रीज हमारी टीमों के पास होती हैं, उसके बावजूद हम दूसरा हिस्सा ये भी देख रहे होते हैं कि वो लेबॉर्ट्री कितनी केपेबल है कि वो क्या आजकल जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के काबिल भी है कि नहीं। तो डायरेक्टरेट ऑफ मिल्क जो है ये फोकस्ड अपना इसका और कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपके इल्म में है कि पंजाब फूड अथॉरिटी रेस्टोरेंट्स को भी देखती है, स्वीट शॉप्स को देखती है, बेकरीज को देखती है। डॉलर की बात करें तो डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। 2 रोज़ में डॉलर 19 रुपये सस्ता हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 297 रुपये पर आ गया है, तो वहीं इंटरबैंक 32 पैसे सस्ता और इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 15 पैसे पर आ गया है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में गुज़श्ता रोज से मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। रुपये की कदर भी संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर इंटरबैंक डॉलर रेट और ओपन मार्केट में जो बहुत ज़्यादा फर्क देखा जा रहा था, वो गुज़श्ता शाम से ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज भी तकरीबन मार्केट में मुस्बत रुझान रहा और मार्केट मुस्बत रुझान पर बंदी, और आज मार्केट का आगाज हुआ तो उसमें भी मुस्बत रुझान देखा गया और अब तक डॉलर की कदर में तकरीबन 2 रोज में 19 रुपये की कमी हो चुकी है, जिसके बाद डॉलर ओपन मार्केट में तकरीबन 296 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। दूसरी तरफ ओपन मार्केट इंटरबैंक डॉलर रेट में भी मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और 135 पैसे तक डॉलर मजीद सस्ता हो चुका है, जिसके बाद 285 रुपये 20 पैसे तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट राय के मुताबिक गुज़श्ता रोज हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त इक़दाम किए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जो है मसनूई तौर पर डॉलर महंगा किया जा रहा है ओपन मार्केट में, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में सट्टेबाजों ने अपनी पोजीशन क्लियर करनी शुरू की हैं, जिससे मार्केट में डॉलर की कदर में कमी होती हुई नजर आई है। रुपये कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आया, क्योंकि जो 30 रुपये का फर्क पैदा हो चुका था वो मसनूई ख्याल किया जा रहा था, गैर मामूली ख्याल किया जा रहा था, जिस पर हुकूमत की जानिब से इक़दाम होने के इम्कान के पेश नज़र सट्टेबाज मार्केट पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और डॉलर अपनी पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है। अच्छा जाहिर, डॉलर की कमी जो है वो मुसलसल नीचे आती जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी जो कमी है वो महंगाई पर असर रसूख नहीं हो रही। जी बिल्कुल, अमूमी तौर पर यही रुझान देखा जाता है कि एक बार जिसकी कीमत बढ़ जाती है चीज़ की, वो दोबारा वापस कम ही आती है। लेकिन ये एक मुस्बत रुझान देखा गया है कि खासतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो आलमी मार्केट में कमी हुई थी, उसके साथ अब आवाम तक पहुँचे हैं और इसमें भी थोड़ा सा इंटरबैंक डॉलर रेट जो कम हुआ था, इसकी वजह से ये देखा जा रहा है। क्योंकि ये कल से रुझान शुरू हुआ, इसलिए अगर आइंदा एक हफ्ता या 10 दिन तक ये रुझान जारी रहता है डॉलर की कदर में कमी का, तो इससे लाजमी तौर पर असरात सही नजर आ सकते हैं। फौरी तौर पर इसका इम्कान नहीं है। इसी तरह ये तोक़ो की जा रही है कि अगर कम अज़ कम 1 से 2 हफ्ते तक डॉलर की कदर में इसी तरह कमी होती रहे तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि तो महंगाई की सबसे बड़ी वजह डॉलर का महंगा होना ख्याल किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये फी लीटर मुकर्रर हो गई है। लाइट और हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपये फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। शहरियों को बड़े रिलीफ की उम्मीद थी। शहरी मस्जिद क्या कहते हैं बताएंगे अब्दुल कादिर। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया है और इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता किया गया और डीजल की कीमत में 5 रुपये का रिलीफ दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो शहरियों के लिए
₹262 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की ₹253 फ़ी लीटर कीमत मुकर्रर की गई है। शहरियों को तवक्का ये थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 20 से 30 रुपए फ़ी लीटर तक कम होगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 8 रुपए और डीज़ल जो है वो 5 रुपए फ़ी लीटर तक सस्ता किया गया। और ये कीमतें जो हैं वो आइंदा 15 रोज़ के लिए हैं और 15 रोज़ के बाद इनका तयन दोबारा से किया जाएगा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि पेट्रोल 8 रुपए तक सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे, क्या तवक्का थी, मज़ीद होना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने अवाम के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। 8 रुपये कोई वैल्यू नहीं होती 8 रुपये की, कम से कम 30 से 40 रुपये लीटर सस्ता होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे मेरा रोज़ का 400 रुपये पेट्रोल का लगता है, यही अगर आप 40 रुपये सस्ता करते तो वो कम से कम 150-200 की बचत होनी थी। वो इतनी महंगाई है, इतने टैक्सीज़ हैं, ये जितने भी टैक्सीज़ अवाम से लेते हैं, हुक्मरान कोई मुझे ऐसा बता दे जो टैक्स देता हो। हाँ जी, बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि हुकूमत से तवक्का ये थी कि इस बार रिलीफ जो है वो 30 से 40 रुपए का दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने रिलीफ सिर्फ 8 रुपए का दिया है, जिसकी वजह से जो मामूलात ज़िंदगी के अखराजात हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, जिसमें पेट्रोल जो मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होता है या गाड़ियों में इस्तेमाल होता है ऑफिस और दफातर और कारोबार पे जाने के लिए, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जब तक बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा महंगाई के इस दौर में जो लोगों का बजट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर अपडेट करने का। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पर शहरियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता करके अवाम के साथ मजाक किया गया है। शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। महंगाई के तनासब से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये की कमी कुछ भी नहीं है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल कम अज़ कम 50 से 100 रुपये तक सस्ता किया जाए। पेट्रोल 8 रुपये बहुत कम सस्ता की है, कम से कम 50 रुपये तो सस्ता होना चाहिए ना, कम से कम को पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो अच्छा मिले ना। ये कब 8 रुपये कम कर दिए हैं? इन्होंने ये 8 रुपये कम करके ऊँट की दाढ़ में ज़ीरा रखने की कोशिश की है, क्योंकि रशिया से सस्ता पेट्रोल आ रहा है। पिछले साल ईरानी सफ़ीर की स्टेटमेंट थी। ये गवर्नमेंट वैसे ही फ्लॉप हो चुकी है, ना तो अवाम को रिलीफ दे पा रही है और ना ही देने की पोजीशन में है। ठीक है, अब देखिए पेट्रोल आप लोगों ने 8 रुपये सस्ता करके हमें कल से सुना रहे थे इस महीने में हमने 15 दिन में 20 रुपये कम किया है। जब बढ़ाते हैं तब इनको नज़र नहीं आ रहा होता। पेट्रोल के हवाले से सर क्या कहें, 8 रुपये सस्ता किया, 8 रुपये सस्ता करने से क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम इन्हें चाहिए कि 100-150 रुपये सस्ता करें, जिस तरह आवाम के हालात जा रहे हैं। जब इन्होंने बढ़ाना होता है तो 30-30 रुपये, 40-40, 50-50 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं। जब कम करना हो 2 रुपये, 5 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, क्या हुकूमत कर रही है? पेट्रोल के हवाले से क्या कहना है सर? आप देखें कि 8 रुपये या 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम करते हैं ये लोग, ठीक है, और 8-10 रुपये कम करके गरीब आदमी को किसी चीज़ का रिलीफ नहीं मिलता इस चीज़ से। हर चीज़ के दाम पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से बाहर। ब्रॉयलर गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो की सतह से नीचे न आया। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा भी न रुक सका। बढ़ती महंगाई पर आवाम की दुहाई, कहते हैं अब तो गुजारा मुश्किल तर हो गया है। अवाम महंगाई के गर्दाब में फंस कर रह गए। पोल्ट्री मसनूआत सस्ती होकर भी पहुंच से दूर हैं। ब्रॉयलर 600 रुपये फी किलो की सतह से नीचे न आया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए की कमी, फी किलो कीमत 611 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे भी 13 रुपए सस्ते, फी दर्जन कीमत 260 रुपए पर आ गयी। सब्जियां और फल भी कुव्वते खरीद से बाहर हैं। सरकारी रेलिस में 10 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 90 रुपए, टमाटर 50 रुपए, सब्ज मिर्च 90 रुपए फी किलो है। मेथी 240 रुपए, बैंगन 80 रुपए, खीरे 100 रुपए और पालक 60 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। फूल गोभी 150 रुपए, अरबी 260 रुपए, मटर 320 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। फलों में सेब काला कुल्लू 480 रुपए, आड़ू 300 रुपए, आम सिंदड़ी 350 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। केले दर्जावल 350 रुपए और दर्जा धोम 230 रुपए फी दर्जन है। अवाम का कहना है कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अब गुजारा करना आसान नहीं रहा। बहुत ज्यादा महंगाई है। फल के घर पूरा रमज़ान गुजर गया, एक मरतबा भी फल नहीं लेके गए घर, महंगाई की वजह से। सब्ज़ी फल तो खा ही नहीं रहे हम, यकीन करें आप, सब्ज़ी फल तो ले ही नहीं सकते, इतने को परेशान है। सरकारी रेट लिस्टों में कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानदार मनमाने कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा के हवाले से खबर की है कि शहर लाहौर में लगने वाली 13 मवेशी मंडियों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने 2 अरब रुपए के फंड देने से साफ इनकार कर दिया। शहर की 13 टैक्स फ्री मंडियों पर टैक्स लगाने की हिदायत भी दे दी गई हैं, तो वहीं कॉन्ट्रैक्टर्स को मवेशी मंडियों में फी बकरा टैक्स इकट्ठा करने की हिदायत दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा।
देखिए, पहले PSL हुआ तो वहाँ पर भी जो है पैसे देने से हुकूमत की तरफ से इनकार किया गया, और अब जो है शहर में जो है सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है ईद उल अज़हा से कबल मवेशी मंडियों का, और शहर की हर दफ़ा जो है 13 से 14 मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं, जहाँ पे जो है तमाम इंतजामात सरकारी इदारों को पूरे करने होते हैं। इस वाले से ईद उल अज़हा से 10 रोज़ कबल शहर की लाहौर में फाल होने वाली 13 मवेशी मंडियों का मुस्तकबिल इस वक्त जो है वो दांव पर लग गया है, क्योंकि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने 2 अरब रुपए के फंड देने से साफ इनकार कर दिया है। शहर में दाखिल होने वाले कुर्बानी के जानवरों की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सुपुर्द कर दी गई है, जबकि शहर के 13 टैक्स फ्री मंडी पर टैक्स लगाने की हिदायत वाले से कॉन्ट्रैक्टर्स को मवेशी मंडियों में 30 बकरा टैक्स इकट्ठा करने की हिदायत दी गई है। ज़राए ने यह भी बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को शामियाने जनरेटर वर्क के काम करने की हिदायत दी गई है, जबकि फंड का खर्चा आड़तियों से 30 बकरा टैक्स लेकर पूरा किया जाएगा। 13 मवेशी मंडियों के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए की हती रकम जो है वो मांगी गई थी, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात की तरफ से फुल स्टॉप लगा दिया गया है। 2 रोज कबल कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को खत लिखा था, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को फंड्स जारी करने की इस्तदा की गई थी। मवेशी मंडियों को फाल करने के लिए 2000 मिलियन की इस्तदा की गई थी। मंडियां शहर के 13 पॉइंट पर फाल की जानी थी, जो कि अभी जो है इस काम को रोक दिया गया है, और सरकारी जो सतह पर जो पैसों का ज़िया था या खर्चा था उसको भी रोक दिया गया, और जो मंडियां हैं वो अब कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले की जानी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स शामियान लगाएंगे, जनरेटर लगाएंगे, और जो भी वक्त के काम होंगे वो करेंगे, और इसके ऊपर जो है 30 बकरा टैक्स जो है वो मुतलका आरती से लेंगे। और इस वाले से अभी हदायत दी गई है, इसका बाकायदा तौर पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा काम शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा ताहाल नामुकम्मल, हुकूमत की खामोशी। LDA ने मंसूबे का डायरेक्टोरेट भी अमलन बंद कर दिया। 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम भी रोक दिया गया। अब 4000 अपार्टमेंट्स की बजाय सिर्फ 896 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुलाबदीन जी, बताइए। बेघरों को छत की फराहमी के लिए LDA की जानिब से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा 2.5 साल कबल शुरू किया गया, जो अभी तक नामुकम्मल है। हुकूमत की इसके ऊपर पूरे तरार खामोशी है, जबकि LDA ने मंसूबे का डायरेक्टोरेट भी अमलन बंद कर दिया है। मौजा हलोकी में 4000 अपार्टमेंट्स की तमीर का काम भी रोक दिया गया है। अब अपार्टमेंट्स मिलेंगे या अलाटियों के पैसे जब्त हो जाएंगे, इसके ऊपर LDA इंतजामिया तजब्जुब का शिकार है। दूसरी जानिब LDA हुकाम ने नया पाकिस्तान अपार्टमेंट के लिए नई हिकमत अमली बनाई है कि मौजा हलोकी में 4000 अपार्टमेंट्स की तमीर का मंसूबा ही खत्म कर दिया है। अब 4000 अपार्टमेंट्स की तमीर की बजाय सिर्फ 896 अपार्टमेंट्स तमीर किए जाएंगे। शोबा इंजीनियरिंग ने तीसरी मरतबा अपार्टमेंट्स के रिवाइज PC1 की तैयारी शुरू कर दी है, और आइंदा गवर्निंग बॉडी इजलास में तीसरा रिवाइज PC1 पेश किया जाएगा। अपार्टमेंट की अलॉटमेंट लेने और पैसे जमा करवाने वालों को सिर्फ अपार्टमेंट दिए जाएंगे। कुरान अंदाजी में शामिल होने वाले 896 अफराद ने अपार्टमेंट लेने के लिए बैंकों में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक अलॉटियों को ये अपार्टमेंट नहीं मिल सके। इसके अलावा ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि नेफ्टा की जानिब से भी LDA को मिलने वाली सब्सिडी की रकम मुंतकिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से 2.5 वर्ष बाद भी LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट का काम सिर्फ 11% मुकम्मल हो सका है। LDA ने अपार्टमेंट्स पर हकदारों से 40 करोड़ 32 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक भी अपार्टमेंट की तमीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा नाअहल है और हुकूमत की खामोशी, जबकि मूसा हलोकी में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का काम भी रोक दिया गया है। वजह तहां सामने नहीं आई है। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से निपटने के लिए मौसर हथियार। पंजाब पुलिस ने आंसू गैस के शेल खरीद लिए हैं। IG पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच ने 15,000 आंसू गैस के शेल खरीदे हैं। 17 करोड़ मालियत के 2 मुख्तलिफ क्वालिटी के शेल खरीदे गए हैं और सबसे ज़्यादा 7000 शेल लाहौर पुलिस को दिए जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से निपटने के लिए पंजाब पुलिस ने आंसू गैस के शेल खरीद लिए हैं। IG पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच ने 15,000 आंसू गैस के शेल जो हैं खरीदे हैं। 17 करोड़ मालियत के 2 मुख्तलिफ क्वालिटी के जो है शेल खरीदे गए हैं। खरीदे गए शेल में सबसे ज़्यादा 7000 शेल लाहौर पुलिस को दिए जाएंगे। बाकी मानदा जो है वो शेल पंजाब के दीगर अजला में तकसीम किए जाएंगे। लाहौर पुलिस की तरफ से IG पंजाब से आंसू गैस के जो है वो शेल मांगे गए थे, जिसके बाद जो है वो शेल खरीदने का जो अमल जो है वो शुरू किया गया। अब जो है वो खरीद लिए गए हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान लाहौर में
आंसू गैस के शेल की बड़ी तादाद में मुजाहिरीन को मुनशिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के शेल ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से लाहौर पुलिस के पास आंसू गैस का जो स्टॉक था वो बहुत कम हो गया था और पुरशदत मुजाहिरीन को मुनशिर करने के लिए पुलिस के पास आंसू गैस ही सबसे अहम और मौसर हथियार होता है। जब पुरशदत मुजाहिरीन आगे बढ़ते हैं तो पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा आंसू गैस का इस्तेमाल करती है और आंसू गैस के सामने जो है वो पुरशदत जो मुजाहिरीन है वो मुनशिर होते हैं। लाहौर पुलिस के पास जो स्टॉक कम हो गया था, जिसके बाद जो है वो लाहौर पुलिस की तरफ से आईजी पंजाब को डिमांड की गई थी, मजीद शेल मांगे गए थे, जिसके बाद जो है अब जो है वो शेल खरीद लिए गए हैं और जल्द जो है वो लाहौर पुलिस को जो नए 7000 शेल हैं वो मिल जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर हाउसिंग असगर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। फलायामा के प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए टाइमलाइन मुकर्रर। मोहसिन नकवी की नए प्रोजेक्ट्स की तामीराती काम के आगाज़ को जल्द से जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास का अहवाल बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए टाइमलाइन भी मुकर्रर की गई है और तामीराती कामों को मुकर्रर मुद्दत से मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। नए प्रोजेक्ट की तामीराती काम के आगाज से जल्द यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया है और मोहसिन नकवी का कहना था कि प्रोजेक्ट के आगाज के लिए डिजाइन और दीगर जरूरी लोग तय किए जाएँ और अवामी फलाह बहबूद के तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों के दौरान मुतबादल ट्रैफिक का बेहतरीन प्लान तैयार किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के जरिए मुतबादल रूट की चीज तजवीज़ किए जाए। इजलास में एलिवेटेड एक्सप्रेस से रोड और दीगर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। साबिक और मौजूदा हुक्मरानों की लड़ाई किसी असूल इख्तलाफ पर नहीं, इनकी लड़ाई ज़ाती मफादात और इक़्तिदार की है। इनकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मज़ीद कहा मसला कश्मीर भी इनकी तरजीह नहीं है। 75% पाकिस्तानी महरूमी का शिकार हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। या साबिक़ हुक्मरान हो, आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन आपस का ये इख्तिलाफ उनका किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं है और ये इख्तिलाफ करप्शन के ख़ात्मे पर भी नहीं है। इनकी लड़ाई कश्मीर के आज़ादी पर किसी उसूली इख्तिलाफ पर भी नहीं है। इनकी लड़ाई IMF और वर्ल्ड बैंक से निजात के लिए किसी पॉलिसी पर भी नहीं है। ज़ात की लड़ाई है, मफादात की लड़ाई है और एक ही उसूल है कि मेरा चोर जिंदाबाद और तुम्हारा चोर मुर्दाबाद। तमाम नेमतों के बावजूद हमारी हुकूमत के बदतदबीरी, बदआमाली, ऐश और इशरत और नालायकी और नाअहली की वजह से यहाँ चारों तरफ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेयकीनी है और इंसाफ नहीं। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है। मुल्क में इक्तसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस है। हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेनेटर चौधरी जाफ़र इकबाल की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के अहवाल जानते हैं मोहम्मद यासीन से। बताइए यासीन। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल ने आज गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुद्दे पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है। मुल्क में इक्तसादी तौर पर बेपनाह चैलेंज है। हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़म है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली इत्तेहाद और यकजहती में है। रसूल नून ने अपने सबका एतबार में अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए। तालीम, सेहत के शोबे में तरक्की, मोटरवेज, नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके फराहम किए। उनका कहना था कि हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के गरीब और मतवसत तबके की माली मुश्किलात में कमी तमाम वसाइल बुरे कार ला रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और मुल्क में अमन
अमन के क्याम के लिए फौज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिश ये काबिल तहसीन है। सेनेटर जाफर इकबाल ने गवर्नर पंजाब को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया, जबकि गवर्नर पंजाब ने उनके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। जी ठीक है यासीन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुकम्मल रकम लेने के बावजूद गाड़ी को इस्तेमाल शुदा टायर लगाकर देने का मामला। फैसल टाउन के ताजर के खिलाफ सारिफ अदालत में 3 लाख रुपए का अर्जाना दायर किया गया है। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने शहरी यूनिस की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने दुकान के मालिक को नोटिस जारी करके 25 जून को जवाब तलब कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, में मुकम्मल रकम लेने के बावजूद गाड़ी को सेकंड हैंड टायर लगाकर देने का ये मामला है, जिसमें अदालत ने फैसल टाउन के ताजर के खिलाफ 3 लाख रुपए जाने का दावा दायर हुआ है। अदालत में सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने शहरी यूनिस की दरख्वास्त पर समाअत की है और नोटिस जारी की है, जबकि दुकान के मालिक को 25 जून को तलब किया है। तो तहसीलदार ने अदालत में बताया कि फैसल टाउन से अपनी गाड़ी के जो है वो नए टायर लगवाए, जबकि नए टायर कहने के बावजूद रकम पूरी लेने के बावजूद टायर जो है वो पुराने लगाए और टायर लगाते ही कुछ अरसे में टायर फट गए और काम करना जो है वो बंद कर गए। जबकि दुकानदार के पास दोबारा गया तो उसने वापस करने से इनकार किया और ज़दकोब करके बाहर निकाल दिया। लिहाजा अदालत से कहा कि यदि कि अदालत दुकानदार से 3 लाख रुपए जो है वो हर्जाना दिलवाए। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर तारिक। मानसून के दौरान तहखानों की खुदाई रुकवा दी जाए, ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला इमारतों के गिर्द हिफाजती इंतजाम किए जाए। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद के चीफ म्यूनसिपल अफसरान को हिदायत। आपको बता रहे हैं कि मानसून के दौरान तहखानों की खुदाई रुकवा दी जाए और ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला इमारतों के गिर्द हिफाजती इंतजाम भी किए जाएँ। निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से ये चीफ म्यूनसिपल अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताएं कि समर कैंप लगेंगे या नहीं। निजी स्कूल्स ने लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी से इजाज़त मांग ली है और सेकेंडरी स्कूल से हिदायत लेकर समर कैंप की इजाज़त देंगे। एजुकेशन अथॉरिटी ने बॉल महकमा स्कूल एजुकेशन के कोर्ट में फेंक दी है, जबकि 6 जून से स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। 6 जून से पंजाब भर के निजी व सरकारी स्कूलों में जो है मौसम गर्मा की छुट्टियों का गर्मा में समर कैंप की इजाज़त होगी या नहीं, इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन से भी इजाज़त मांगी गई है। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आज पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने जो सीयू एजुकेशन अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट की है कि समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। और काशिफ अतीब जाफदानी का कहना है कि इन समर कैंप्स में खुसूसी क्लासेस लगाई जाएंगी। जो छुट्टियां हुई हैं जिससे बच्चों का तालीमी हर्ज हुआ है वो इसमें पूरा किया जाएगा और जो बच्चे तालीमी तौर पर थोड़ा वीक हैं उनको खुसूसी तवज्जो इन समर कैंप्स में दी जाएगी। इसके साथ साथ पहली दफ़ा पंजाब के 5 अजला में खुसूसी समर कैंप जो है वो लगाए जाएंगे और ये सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे। तो इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी के सरबराह परवेज अख्तर का कहना है कि इसका आखिरी फैसला जो है वो सेक्टरी स्कूल करेंगे। इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो सेक्टरी स्कूल को भिजवा दी गई है। बहुत शुक्रिया आतिफ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नोमान लेस्को हेडक्वार्टर्स क्वींस रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ और जब बोर्ड ने वर्किंग शुरू की तो तकरीबन 8 से 10 माह की पेंडेंसी चल रही थी। 8 से 10 माह की इस पेंडेंसी को महकमे ने बड़ी जद्दोजहद के साथ जो 5 लाख मीटर की सप्लाईज हुई और जो नए कनेक्शन लगे उसमें तकरीबन ये पेंडेंसी अब आ गई है तकरीबन 1.5 से 2 माह के ऊपर, जो कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और जो मैंने कल भी इसके हवाले से खबरें देखी हैं मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया दोनों पे इस बात को बड़ा हाईलाइट किया गया है। जो पेंडेंसी है वो 1.5 से 2 माह की रहेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 1.5 से 2 माह की पेंडेंसी आज से 4 माह पहले ये 8 to 10 मंथ्स की पेंडेंसी थी उस वक्त। तो ये इतनी बड़ी जो बैकलॉग क्लियर किया गया उसके नतीजे के अंदर अब 1.5 से 2 माह की पेंडेंसी के ऊपर हम आ गए हैं और मैं मीडिया का मशकूर हूँ कि मीडिया ने हमारी हेल्प करते हुए इसको पॉइंट आउट किया और मीटर्स की जो हम समझते हैं कि जो बेंच मार्क है हमारा जो हमने अनाउंस भी किया हुआ है वो ये है कि 8 से 10 दिन की पेंडेंसी होनी चाहिए कि जो एक आम सारिफ जो है वो नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करे, चाहे वो 3 फेज़ मीटर है चाहे वो सिंगल फेज़ मीटर है। ये 2 जो सारिफ वो हैं जो कंज्यूमर हमारे जो आवाम में डोमेस्टिक या कमर्शियल जिन्होंने मीटर लगवाने होते हैं,
पेंडेंसी जो है वो मैक्सिमम 8 to 10 डेज़ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बिल्कुल बेंचमार्क है और इस हवाले से हमने ऑलरेडी बोर्ड ने भी रिजॉल्व किया हुआ है और हमारा एक टारगेट और फोकस है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो इशू थोड़ा सा बना वो ये हुआ कि जो मीटर सप्लाई कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से डिले के मैटर आ रहे थे कि जो मीटर्स की जो सप्लाई को जो ऑलरेडी टेंडर हो चुके थे, उन्होंने सप्लाईज़ के वादे किए हुए थे, वो अपने टाइम के ऊपर उन्होंने सप्लाई जो है वो नहीं दी। मैंने इसका फौरी तौर पर जायज़ा लिया। मैंने सारे कल अपना कंपनी टू कंपनी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। मैंने देखा कि किसी ने कोई ऑर्डर 1 साल पहले। शहर में होने वाली बारिश ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। फ़िज़ाई आलूदगी का मसला अभी भी बरकरार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 रिकॉर्ड। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता दिनों की बारिशों से तो यही देखा जा रहा है कि मौसम जो है वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। साथ में जो है वो दर्जा हरारत में भी हमें अच्छी खासी कमी देखने में नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो शहर लाहौर का मौसम हसीन है। आसमान पर बादलों का राज है और साथ साथ जो है वो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अगर मैं बात करूं हवा के हवाले से तो महकमे मौसमियात की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज हवा की जो रफ्तार है वो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है ये इसी तरीके से ही जारी रहेगी। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में जो है वो मज़ीद बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जून का महीना चल रहा है लेकिन जून के महीने में दर्जा हरारत जो है वो हमें फरवरी वाला मिल रहा है। मौसम जो है वो हसीन हुआ है। हमेशा यही देखा जाता है कि जून के महीने में जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करता हुआ नज़र आता है, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि जून के महीने में जो है वो दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि अगले 24 घंटों तक जो मौसम है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ हवा में नमी के तनासुब की तो आज 55% बहुत शुक्रिया सामिया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाई गुलबर्ग से हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 4 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी 8,50,000 मालियत के प्राइस बॉन्ड बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में आदिल और इलियास शामिल। मुकदमा दर्ज। मज़ीद बताएंगे राहिल अली। जी राहिल। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से हवाला होने के कारोबार में जो लोग हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तेज कर दिया गया और इसके हवाले से बड़ी कार्रवाई गुलबर्ग के इलाके में की गई है, जहाँ पर जो है तकरीबन 4,20 लाख रुपए जो पाकिस्तानी करेंसी है और इसके अलावा 8.5 लाख रुपए के जो प्राइस बॉन्ड है वो जब्त कर लिए गए। और मुलजिम जो आदिल और इलियास है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस वजह से बताया जा रहा था कि काफी अर्से से गैर कानूनी तौर पर हवाला होने का कारोबार कर रहे थे, जिससे मुलजमान के साथ कार्रवाई की गई है और अब मुकदमा दर्ज से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। खबर ये है कि सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद से वर्ल्ड बैंक के मिशन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में 2000 देहातों में सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबों और वाटर टैरिफ लगाने पर गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं कि 16 तहसीलों में वाटर टैरिफ लगाने की तजवीज़ वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद से वर्ल्ड बैंक के मिशन ने मुलाकात की है। इस वाले से 2000 देहात में सीवरेज वाटर सप्लाई के मंसूबों और वाटर टैरिफ लगाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इस वाले से सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि 200 देहात में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे वार्ड किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के मुकर्ररा डेडलाइन से 4 महीने पहले इंजीनियरिंग वर्क शुरू किया जा रहा है। इस वाले से 16 तहसीलों में वाटर टैरिफ लगाने की तजवीज़ वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है, जबकि बोर्ड की जानिब से कंपनी के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी भी हो चुकी है। PRMC की मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए PWP में तजमीमी TC1 जो है पेश कर दिया गया है, जबकि वर्ल्ड बैंक मिशन ने पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी को तफवीज़ 6 महीनों के अहदाफ का भी जायजा लिया है। इस वाले से आलमी बैंक के वफद की सेक्रेटरी बल्दियात वो तमाम मनसूबाजात में मुकम्मल ताउन की यकीनदानी भी करवाई गई है। बहुत शुक्रिया इमरान। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर और दीगर तारीखी मकामात के इंतज़ामी कंट्रोल से मुतल्लिका अमूर का जायज़ा लिया गया। SM तनवीर कहते हैं कि सियाहती और तारीखी मकामात हमारा कीमती असासा है।
इस पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत व तवानाई एसएम तनवीर की ज़ेर इजलास हुआ है। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर और दीगर तारीखी मकामात के इंतजामी कंट्रोल से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मंसूर कादिर, चीफ सेक्रेटरी लॉ टूरिज्म, लोकल गवर्नमेंट और डीजी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने भी इजलास में शिरकत की और सियाहत कौमी मईशत का कुलीदी सेक्टर है, ये कहना है सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत का। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियाहत को फरोग़ देकर अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। तारीखी विरसा किसी भी मुल्क और कौम का अजीम सरमाया होता है। सियासी तरीखी मकामात हमारा कीमती असासा है। इन मकामात को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी रहेगा। सियासी और तारीखी मकामात की हिफाजत और दूसरे अखबार में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। सियासी मकामात को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत की जानिब से ये अहम जायज़ा लिया गया है कि तारीखी मकामात को इंतज़ामी कंट्रोल के हवाले से कैसे मुनज़्ज़म किया जाए और सयाहत को फ़रोग़ देकर अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला कैसे हासिल किया जा सकता है। और नाज़रीन कहते हैं कि आवाज़ों की ख़ास तरतीब और फिर इन आवाज़ों में जज्बात की शमूलियत ने मौसीकी को जन्म दिया होगा। इस बारे सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। बरसगीर के खित्ते में मुगलों ने मौसीकी को बामे अरूज पर पहुंचा दिया था। इसी दौर में तारीख ने तानसेन को भी जन्म दिया था। आलम तो ये था कि एक मुगल बादशाह अकबर खुद भी बेहतरीन नक्कारा बजाया करता था। उसके दरबार के मशहूर आलात मौसीकी में सरमंडल, बीन, नय, करना और तानपुरा थे। मैं खुद सागर वीणा बजाती हूँ, जो कि एक जदीद साज है और वो उसको जो उसकी एक अगर तारीख़ आप कहें तो मैं हज़ारों साल पीछे ट्रेस कर सकती हूँ। तो ये तो इंसान के ज़हन की तरक्की और उसकी इर्तिक़ा का एक सबूत है। आज साज़ों में बहुत जिद्दत आ चुकी है, लेकिन ये जदीद साज अपनी अफादियत के लिए पुराने साज़ों के ही मरहून मिन्नत हैं। आज के दौर में तो आलात मौसीकी की एक तवील फहरिस्त है जिनका शुमार काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कदीम ज़मानों में ये तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तब ढोल, ढोलक, तबला, सारंगी, हारमोनियम, सत्तार और बांसुरी जैसे आलात मौसीकी ही ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ऐसे ही कदीम आलात मौसीकी की एक अच्छी कलेक्शन लाहौर अजायब घर में भी देखने को मिलती है। क्लासिकी मौसीकी दरअसल हमारी सकाफ़त। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।